Our subject name is simulation, modeling and analysis. Simulation, modeling and analysis. In today's class, we are going to discuss in detail the term modeling. The term modeling. After understanding the modeling, then we will understand the term simulation. Right? So, today's focus will be on modeling. तो सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. We are having a system, है ना? We are having a real system. We are having a real system. For suppose we have discussed the traffic light system. So traffic light system is a real system. It is existing. We have discussed the banking system. It is again a real system. Supermarket system, real system. Restaurant, admission management, everything. This is a real system. So we are converting this real system into a model. We are converting this real system into a model. And on this model has some speciality. Speciality in the sense it is picking the dynamics of the system. This real system is having some dynamics, some properties, some activities. So this model is picking the dynamics of the system. हम ऐसा मॉडल ना बनाएं कि वो पता लगा रियल सिस्टम को रिप्रेजेंट तो करे. That model should represent the real system in some sense. 100% represent ना करे, but may it represent 90%, 80%. Total, it is representing 80% properties of the total real system. So it is picking the dynamics of the system which are study of interest. Which are study of interest. ठीक है. तो किसी भी रियल सिस्टम को यदि हमें स्टडी करना है तो सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम फॉर्म करते हैं. प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन सबसे पहले यही होता है. इस प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग वी कन्वर्ट दैट रियल सिस्टम और वी मेक ए मॉडल ऑफ दैट रियल सिस्टम which is picking the dynamics of the system as per our problem definition. So we make the model. So this step is model building. This step you can say this is the model building. So first step you can say it is the problem formulation. Second step is the model building. Okay, after building the model, you have to go for experiments. You have to go for experiments. So you will perform the experiments on the model. You will perform the experiments on the model. But why are you not performing the experiments on the real system? You are not performing the experiments to the real system because those experiments are costly. Those experiments are costly and time consuming. They are very much time consuming and they are very much costly. So we are making a model and we are experimenting on that model. These experimentation are less costly as compared to real system experiments. And from these experiments, we are getting some results. We are getting some results. We are analyzing those results. So now it is an analysis part, results analysis. And on the basis of this analysis, we are taking some decisions. Or we are doing the decision making.
So this is the general steps. So our subject name is simulation, modeling, and analysis. So in this subject, you are having a real system. You are having a real system. Suppose you are from production department. So production is also a system. Manufacturing is a system. Production is a system. You are having a real production system. You are having some assembly lines of so many things. So you are making the model of that real system. You are doing experiments on that model. So these experiments gives you some results, and on the basis of those results you are doing analysis, and on the basis of analysis you are doing taking some decisions which are useful for accomplishing the goal that are formed in the problem definition. हमारी problem definition में जो भी हमने goal बनाया था, हमारे उस goal को achieve करने में ये decisions हमारी क्या करने वाले हैं, help करने वाले हैं. So this is the common steps, है ना. तो अभी हम जरा मॉडलिंग के स्टेप को थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, है ना. फिर आगे एक्सपेरिमेंट्स को भी बात करेंगे, बट अभी मॉडल पे बात करते हैं. तो रियल सिस्टम और मॉडल. तो देखिए मैं एक रियल सिस्टम ले लेता हूँ फिलहाल. मान लीजिए कि मेरे पास एक रियल सिस्टम है. सपोज ले लेते हैं, अभी हमारा सिलेबस में क्या शुरू हो रहा है, फिजिकल मॉडलिंग, है ना. सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है फिजिकल मॉडलिंग. थोड़ा फिजिकल मॉडलिंग पे ही बात कर लेते हैं. फिजिकल मॉडलिंग. तो देखो, आप लोगों ने ग्लोब तो देखा ही है. यस सर. ग्लोब देखा है आपने, है ना. अर्थ is a real system. Earth is a real system. That globe is the model of that real system. ठीक है. ग्लोब ने इस अर्थ की डायनामिक्स को या अर्थ के ऊपर जितना भी इंफॉर्मेशन है ना. अर्थ में क्या रहता है, आपको रिवर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना. सिटीज की, कंट्रीज की, यही सब इंफॉर्मेशन होती है. तो ग्लोब के ऊपर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. तो बेसिकली ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ, है ना. इसको आप लोग यूज करते भी रहे हैं ज्योग्राफी वगैरह में स्टडी के टाइम पर. सो ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ, है ना. एंड इट इज पिकिंग सम डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम. पिक कर रहा है ग्लोब, अर्थ का मॉडल है. ठीक है. अब इस ग्लोब की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं. ग्लोब की हेल्प से यू कैन डिमॉन्स्ट्रेट. ठीक है. मान लीजिए आप ज्योग्राफी टीचर हैं, then you can demonstrate your lecture with the help of globe. इस ग्लोब की हेल्प से, इस मॉडल की हेल्प से आप स्टूडेंट्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, अर्थ के बारे में बता सकते हैं, है ना. काफी डिटेल में अपने रियल सिस्टम के बारे में बता सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल आप रियल सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है. सो इट इज अचीविंग सम गोल, है ना. So your model is picking the dynamics of the real system and it is achieving some goal. So this globe is a model, and this globe is a tangible model, and you can touch it. Anything that you can touch, that is physical model. So globe is basically a physical model because you can touch it. आप touch कर सकते हैं किसी भी चीज, right? तो ये थोड़ी सी मेरी बात हो गई फिजिकल मॉडलिंग को. और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. तो अब हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मॉडलिंग पे बात करेंगे, है ना. वी विल वर्क ऑन टाइप्स ऑफ मॉडलिंग. और टाइप्स ऑफ मॉडल्स, कितने तरह के मॉडल हो सकते हैं, है ना. कितने तरह के मॉडल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने लिखा कि मेरे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c. y इक्वल टू mx प्लस c सबने पढ़ा है अपनी 9th 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. So this equation represents the equation of the straight line. Equation of the straight line, है ना. X coordinate, y coordinate, m is the slope, c is a constant. So this equation is representing
the equation of a line y equal to mx plus c, right? So this part is c. This is the origin. So this distance is c. So y c is the intercept on the y-axis. So y equal to mx plus c is the equation of a straight line. So this equation can be considered as a mathematical model, for the straight line. Straight line के लिए आप इसे as a mathematical model you can consider y equal to mx plus c, है ना? And you can study that line with the help of this equation. You can study. This is just for example, है ना? Simple सा straight line का ही system ले लिया है. तो मैथमेटिकल मॉडल में क्या होगा, आप सिस्टम को इक्वेशंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. यू रिप्रेजेंट द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस. दैट इज अ मैथमेटिकल मॉडल. तो मॉडल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले एक होता है फिजिकल मॉडल और एक होता है मैथमेटिकल मॉडल. ठीक है. तो देखिए कैटेगरी मॉडल्स, टाइप ऑफ मॉडल्स. It is divided into two parts. First part is physical model. Physical model, जैसे कि अभी ग्लोब का एग्जांपल आपके सामने आया. और एक आपका हो सकता है मैथमेटिकल मॉडल. मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है. मैथमेटिकल मॉडल जैसे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, और कुछ भी, बहुत सारी इक्वेशन मिला के आपने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ना. कुछ स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ एग्जांपल के लिए. So it is a mathematical model. Now the physical models are again characterized, again divided into static models and dynamic models. Similarly, mathematical models are again characterized, again divided into static models and dynamic models. अब static और dynamic में तो फर्क बताइए. What is static? What is dynamic? Static means the state variables are not changing with respect to time. तो static का मतलब है state variables are not changing with respect to time. That is a static model. Dynamic just reverse. The state variables are changing with time. Changing with time. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक लिया इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है. सुपरमार्केट का आपने लिया था. सुपरमार्केट में भी तो इन्वेंट्री मैनेज होती है ना. इन्वेंट्री तो हर जगह मैनेज होती है. तो इन्वेंट्री की जो स्टेटस है, क्या वो टाइम के हिसाब से चेंज होती है या फिक्स रहती है? द स्टेटस ऑफ द इन्वेंट्री is changing with respect to time. जैसे कस्टमर ने शॉपिंग की, इन्वेंट्री का स्टॉक घट जाएगा आपका, है ना. जैसे ही आपके पास बाहर से स्टॉक आएगा, आपका स्टॉक बढ़ जाएगा. तो इट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो यदि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टडी कर रहे हैं तो एक तरह से आप डायनेमिक मॉडल को स्टडी कर रहे हैं, है ना. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ए मैथमेटिकल मॉडल और मैथमेटिकल में भी वो डायनेमिक मॉडल है. Because it is changing with respect to time. यदि आप स्ट्रेट लाइन का जैसे एग्जांपल लिया आपने, तो मैथमेटिकल है, उसमें इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, बट क्या टाइम के हिसाब से आपकी स्ट्रेट लाइन की कुछ वैल्यू चेंज होंगी क्या, कोऑर्डिनेट्स वगैरह? मेरे ख्याल से नहीं, है ना. तो when the state variables are not changing with respect to time, that is a static model. So mathematical model are categorized into static and dynamic. Now, static models are further divided into numerical models and analytical models. Numerical and analytical. Similarly, dynamic models are also divided into numerical and analytical. Now, what is the difference between numerical and analytical? बताएगा आप में से कोई? Anyone?
What is the difference between numerical and analytical? So analytical means when the equations of the model, है ना, आपने मैथमेटिकल मॉडल बनाया है ना, मैथमेटिकल मॉडल में क्या होगा, इक्वेशंस होंगी, कई सारी इक्वेशन हो सकती हैं, मॉडल ऑफ 20 इक्वेशंस, मॉडल ऑफ 25 इक्वेशंस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में पता लगा 12 इक्वेशन है, किसी और सिस्टम में पता लगा कुछ अलग इक्वेशन है. तो इफ दीज इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड by some mathematics rule or mathematics principle already exist, ना, तो किसी methodology का difference है ना. In analytical case, the methodology is available in the mathematics, है ना. The model can be solved with the existing methodology. But numerical model means there is no methodology available. There is no परफेक्ट मेथोडोलॉजी अवेलेबल. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax square plus bx plus c equal to 0, है ना, it is a quadratic equation. This quadratic equation can be solved with the help of some rule. तो आप लोगों ने वो पढ़े होंगे, क्या क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा होगा. यस सर, यस सर. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना. और एक और कौन सा फॉर्मूला होता था, वो श्रीधराचार्य मेथड है ना. यस सर, यस सर, यस सर, श्रीधराचार्य मेथड. तो ये सब एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी है ना. तो सपोज इफ द इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड विद द एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजीज, देन आवर मॉडल इज एनालिटिकल. इट इज एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ दैट मॉडल. एनालिटिकल सॉल्यूशन है ना. हमारे पास कोई मेथोडोलॉजी है, हमने उसे यूज कर लिया तो सॉल्यूशन निकल गया. अब न्यूमेरिकल के केस में क्या है कि मान लीजिए मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी है, x to the power 10 minus 9x cube plus 50 equal to 0. अब मेरी इक्वेशन ये है, तो आपके पास क्या कोई मेथोडोलॉजी है इसे सॉल्व करने की? जैसे इधर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या श्रीधराचार्य आपने लगा दिया, इधर क्या लगाओगे आप? हाउ विल यू सॉल्व इट? बताइए आप लोगों में से कोई भी. हाउ विल यू सॉल्व? मान लीजिए इक्वेशन सॉल्व करने को दे दी जाए आप, तो x के कितने रूट्स आएंगे? कम से कम 10 रूट्स विल बी देयर, क्योंकि इसकी डिग्री 10 है, so that's why 10 roots will be there, है ना. Here only 2 roots will be there. So if the degree is higher, then you are not having a perfect analytical solution for that. है क्या? अभी तक नहीं है ना. x to the power 10 तो बहुत ज्यादा हो गया, x to the power 7 6 का भी नहीं होगा, 4 का भी नहीं होगा ठीक से. Proper solution, है ना. Proper analytical solution cannot be granted by the methodology available in the mathematics. So for the solution of this type of equations, we go for the numerical solution. हम उसको numerical solution की तरफ चले जाते हैं. तो basically these numerical solution, तो static के केस में तो ये numerical solution time के respect में change नहीं होते हैं, but dynamic के केस में ये numerical solution changes with respect to time. टाइम के साथ चेंज और होते रहते हैं. न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अपने आप में एक टफ काम है ना. न्यूमेरिकल सॉल्यूशन रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, रिक्वायर्ड हेवी कंप्यूटेशंस. इट रिक्वायर्स वेरी हेवी कंप्यूटेशंस. सो दोज हेवी कंप्यूटेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन, है ना. आप उसे करने लगेंगे, पता लगा कंप्यूटेशन करने में आपको 3 दिन लग रहा है ना. 3 दिन लग रहा है और सिस्टम की स्टेट तो 1 मिनट बाद फिर बदल गई. सिस्टम की स्टेट 1 मिनट बाद बदल गई, बिकॉज इट इज ए डायनेमिक मॉडल. तो आपकी 3 दिन की कैलकुलेशन का कोई फायदा नहीं है ना. टाइम कंज्यूमिंग और इज ए. तो दैट्स व्हाई कंप्यूटर्स आर यूज्ड, बिकॉज हैवी कंप्यूटेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन द न्यूमेरिकल मॉडल्स. दैट्स व्हाई कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म heavy computations in these type of models. Heavy computations, ठीक है. तो जब हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं
तो इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जब हम कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व करते हैं, है ना, तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन। इसी का नाम क्या हो जाता है, कंप्यूटर सिमुलेशन। तो न्यूमेरिकल मॉडल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिमुलेशन, है ना। हम उस मॉडल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिमुलेट करते हैं, है ना, उससे डाटा मिलता है, डाटा को एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने से रिजल्ट्स मिलते हैं, रिजल्ट से डिसीजन मेकिंग होती है। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर सिमुलेशन, मॉडलिंग, एनालिसिस जो हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में हमारा मेन कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल मॉडल्स पे होना चाहिए, ठीक है। और न्यूमेरिकल मॉडल्स में आपको कंप्यूटर्स का यूज करना है, तो कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एटलीस्ट यू शुड नो वन लैंग्वेज फॉर दैट, है ना। आइदर इट मे बी सी और इट मे बी C++ और एनीथिंग, इट मे बी मैटलैब, है ना। एनी वन लैंग्वेज में आपका हाथ थोड़ा साफ होना चाहिए न्यूमेरिकल मॉडल्स, ठीक है। अब मान लीजिए आपका हाथ साफ नहीं भी है ना, मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर्स में हाथ थोड़ा तंग है ना, तो जनरली आप देखेंगे कि जितने भी सप्लाई चेन मैनेजर्स होते हैं या जो हायर अथॉरिटीज हैं, है ना, जो डिसीजन मेकिंग करती हैं इंडस्ट्रीज में, या मैनेजर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए, देयर आर मैनेजर्स इन द इंडस्ट्रीज। So these managers are not having the knowledge of computers. They are not having the programming knowledge. है ना, जनरल कंप्यूटर नॉलेज नहीं कर रहा हूँ. They are not having the programming knowledge. They are not having the programming knowledge. Okay? तो सिमुलेशन कैसे करेंगे, तो सिमुलेशन नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल सिमुलेशन प्रोग्राम, उसके लिए तो मॉडल बनाना पड़ेगा, मॉडल के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तभी ना आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, राइट। तो अब इस काम को भी सरल कैसे हुआ, नाउ द मैनेजर्स कैन आल्सो simulate, managers can also use the numerical models because now these simulation softwares are available. Simulation softwares packages, है ना, software packages are available in the market, है ना। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, उसको परचेज कर लीजिए, उसकी जो भी कॉस्ट है उसको पे कर दीजिए। नाउ मैनेजर हैविंग दैट सॉफ्टवेयर, and in that software he has not to do any programming, just he has to input some things and he will get the result of the simulation. So software will do the simulation for that manager. So nowadays if you are not having the programming knowledge, then again you can simulate the system with the help of simulation softwares. Okay, so just I have given some idea about the types of models, है ना। मॉडल में भी फिजिकल, मॉडल में भी मैथमेटिकल, है ना। फर्दर कैटेगराइजेशन, मॉडल में भी स्टैटिक, मॉडल में भी डायनेमिक। फर्दर कैटेगराइजेशन, मॉडल में भी न्यूमेरिकल, मॉडल में भी एनालिटिकल। एनालिटिकल मॉडल कैन बी सॉल्व्ड बाय द मेथोडोलॉजीज अवेलेबल इन मैथमेटिक्स, है ना, एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी। एंड न्यूमेरिकल मॉडल, है ना, मोस्ट ऑफ द रियल प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व्ड विद द एनालिटिकल सॉल्यूशन। अब आप देखेंगे, मतलब ऐसे ऐसी इक्वेशंस बनेंगी, जब आप मॉडल्स बनाएंगे तो आपके हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस विल बी देयर, है ना, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दोज डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल सॉल्यूशन। सो इन दैट केस you have to use numerical model for those differential equations, and then you have to make some model, and you have to use some language, program the model, then experiment on the model, then get the result, then the further process. So model may be numerical and analytical, and this numerical model requires heavy computations. That's why it is known as computer simulation, and sometimes it is known as system simulation also. So system simulation and computer simulation are synonyms to each other. System simulation and computer simulation. Yeah, some authors write as computer simulation, some authors say it is system simulation. So when you are working on the numerical models, then the simulations you are doing, those simulations are system simulation and those are computer simulation. This requires heavy computations. Okay? So this is something about the model category. हाँ जी,
कुछ डाउट है अभी तक? मॉडलिंग क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब ये पूरे स्टेप्स को 4-5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्म करो, प्रॉब्लम फॉर्म के बाद मॉडल बनाओ, मॉडल को सिमुलेट करो, सिमुलेट से रिजल्ट लो, रिजल्ट से एनालिसिस करो, डिसीजन मेकिंग करो। हो गया, यही स्टेप्स है, यही करना है। अब इन सारी बातों को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने वाले हैं, है ना। कोई एक एग्जाम्पल ले लेंगे। अब उसमें प्रॉब्लम मिल गई, प्रॉब्लम को हमें सिमुलेट करना है, सिमुलेट करने के बाद में रिजल्ट लेना है और अपनी डिसीजन मेकिंग देनी है। तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे बात करने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से हम बात करने वाले हैं। तो बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी थोड़ा सा लिस्ट आउट कर देता हूँ कि हम कौन कौन सी चीजों पे बात करने वाले हैं। तो देखो, हम बात करेंगे काफी सारी चीजों पे। वी विल वर्क ऑन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सिस्टम को भी हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, है ना। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, है ना। रैंडम वॉक प्रॉब्लम, ये नाम सुना है क्या आपने? रैंडम वॉक प्रॉब्लम, हैव यू लिसन दिस नेम? रैंडम वॉक प्रॉब्लम। जैसे एक मान लीजिए कोई होता है ना ड्रंकर, है ना, ड्रंकर, शराबी तो सुना होगा ना, शराबी, शराब पीने वाला, ड्रिंकर। अब मान लीजिए ड्रिंकर को जब वो चलता है तो कैसे चलता है? वो लड़खड़ाते हुए चलता है ना। तो कभी पता लगा वो आगे की तरफ स्टेप करता है, यानी फॉरवर्ड चलता है ना। कभी वो लेफ्ट की तरफ चल रहा है, कभी राइट की तरफ चलता है। तो उस ड्रंकर की जो मूव है ना, क्या आप उसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये आगे चलेगा या लेफ्ट चलेगा या दाएं चलेगा, है ना। तो उसकी जो मूव है वो रैंडम मूव है ना। क्या करता है वो? रैंडम मूव करता है, वी डोंट नो वो फॉरवर्ड जाने वाला है, लेफ्ट जाने वाला है, राइट जाने वाला है, या बैक जाने वाला है, या चलने वाला ही नहीं है। सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। सो द ड्रंकर मूव इज अ रैंडम वॉक प्रॉब्लम, ठीक है। और इंडस्ट्रीज में जिस तरह से ड्रंकर की मूव अनसर्टेन है, तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स आर अनसर्टेन, most of the industrial problems are uncertain. So these industrial problems can be studied with the help of random walk problem. So in the simulation modeling and analysis, there is a random walk problem, very renowned problem and a very famous problem for handling the uncertainties in the system. So we will make the model of this problem, we will simulate it, and we will use this model in the industrial problems to solve the uncertainty present in those models or those real systems. Okay, तो ये सब कुछ एग्जांपल हैं। और भी हम कुछ करेंगे, जैसे वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 3.14 3.14 होती है या 22/7 होती है? बताओ सर। हाँ, 22/7 होती है वैसे तो। अच्छा, सही कौन सी है इसमें? ये सही है, ये सही है? 3.14 3.14 सही है आपके हिसाब से, और 22/7 ये गलत है? सर ये अप्रोक्स वैल्यू है, कैलकुलेट तो 3.14 सही है। हाँ, अच्छा बताओ, पाई जो है वो कैसी नंबर है? रेशनल नंबर है या इरेशनल है? सर इरेशनल है। इरेशनल है सर, ये इरेशनल। रेशनल है? हैं? यस सर। नहीं, पाई जो है वो इरेशनल है ना। यस सर। पाई इरेशनल है। देखो, हम भले ही इसको 22/7 लिखते हैं, तो 22/7 के हिसाब से तो ये रेशनल दिखाई पड़ रही है। पी बाई क्यू, रेशनल नंबर क्या होती हैं? रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यही डेफिनेशन है ना रेशनल नंबर की। तो यदि पाई की वैल्यू 22/7 मानोगे तब तो ये रेशनल है ना। और यदि आप 3.14 मानोगे तब भी ये रेशनल है, क्योंकि 3.14 कैन बी रिटन एज 314/100। अब यहाँ पे p हो गया 314, q हो गया 100, तो ये फिर से p बाई q हो गया। तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, दोनों ही रेशनल है। लेकिन पाई वास्तव में रेशनल है ही नहीं, ये तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। 22/7 is also approximate value, 3.14 is also approximate value,
पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है ना, हमारे कौन से साइंटिस्ट हुए थे वो, आर्यभट्ट, नाम सुना है ना, Yes, sir. आर्यभट्ट, इंडियन साइंटिस्ट, इन्होंने पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए थे इन्होंने अपनी लैब में पाई को निकालने के लिए, है, और निकालने का फंडा बड़ा इजी था इनका। पाई क्या है? पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। सी बाई डी तो पाई होता है, सी क्या होता है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई डी, डी और 2 आर कैंसिल, तो क्या मिला? पाई। तो पाई क्या है? रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, यही होता है ना पाई। तो आर्यभट्ट ने जो पाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, तो उन्होंने निकाला था 3.14, और फिर ये आगे जा रहा है, कम से कम उन्होंने इसे 56 डिजिट तक एक्यूरेट निकाला था, 56 डिजिट तक। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये पाई की वैल्यू रिपीट नहीं करती है, मतलब ये 56 डिजिट्स रिपीट नहीं करते है ना। एक तो ये होता है कि मान लीजिए आपकी डिजिट्स ऐसे आ रही हैं 0.14287, फिर 0.14287, 0.14287, तो ये तो रिपीटिंग पैटर्न है। जब रिपीटिंग पैटर्न मिलता है तो नंबर रेशनल होती है, और जब नॉन रिपीटिंग पैटर्न मिलता है तो नंबर इरेशनल होती है। तो आर्यभट्ट ने प्रूव किया कि 56 डिजिट तक भी पाई रिपीट नहीं होता है, इट इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होता है, रिपीट भी नहीं होता है। दैट्स व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। फॉर द कैलकुलेशन पर्पस we use either 3.14 or 22/7. These are the approximations for pi. These are not the exact values. Okay, so pi is a irrational number. ध्यान रखिएगा आगे से कभी, है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज की क्लास में इतना ही काफी है ना, और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, समराइज कर देता हूँ आज क्या किया हमने, है ना। फर्स्ट क्लास में वी हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ द सिस्टम, राइट, एंड इन द सेकंड क्लास वी हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ मॉडलिंग, है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, फिजिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिक मॉडल, डायनेमिक मॉडल, न्यूमेरिकल मॉडल, एनालिटिकल मॉडल, स्टोकेस्टिक मॉडल, है ना, डिटरमिनिस्टिक मॉडल, और भी बहुत सारे निकलेंगे अभी, डिटरमिनिस्टिक मॉडल, है ना, स्टोकेस्टिक मॉडल, continuous model, discrete model, so many models, है ना। Just I have give you the idea of modeling. Model means it is picking the dynamics of the system, है ना, it is picking the required dynamics of the system, and model on the basis of that model we can experiment on those model, and during experimentation we get data can be analyzed, analysis can be done. There are further softwares available for analysis also, and statistics again helps us in analyzing the data, and statistics में correlation, dispersion, mean, variance, these also helps us in analyzing the data, है ना। That's why हमने introduction में ये सारी चीजों को revise भी किया है। तो in the next class we will find the value of pi, जो कि आर्यभट्ट ने निकाली है, हम उस वैल्यू को सिमुलेशन की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, we will make the model for finding the value of pi, and we will find the value of pi with the help of simulations, है ना। आर्यभट्ट ने कैसे निकाला? It is the ratio of the circumference of a circle and the diameter of a circle. उसका concept अलग है। We will use different concept, we will use simulation concept to find the value of pi, and we will also simulate the random walk problem, ठीक है, in the next class. So this is all from my side. कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क, अदरवाइज आई विल एंड द क्लास। बोलिए सर, असाइनमेंट देगा सर, असाइनमेंट किधर मिला ही नहीं। असाइनमेंट नहीं मिला? सब्जेक्ट आ रहा है। देखो अब असाइनमेंट किसी एक ने तो देखा है ना, लास्ट क्लास में कौन बता रहा था? आप में से कोई? सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, वहां सब्जेक्ट के नाम आ रहे हैं ना जहां पर आपके। यस सर, सब्जेक्ट के नाम आ रहा है, वहीं पे जाके मिल जाएगा। हाँ, सर इसमें माय अकाउंट में जाके, सर मैं टाइम टेबल में सब्जेक्ट्स के वो आ रहे हैं, उसमें क्लिक किया है। हाँ वहां तो अटेंडेंस आ रही होगी। सब्जेक्ट जहाँ लिखा है वहीं पे ऑप्शन है ना सब्जेक्ट का। हाँ, वहीं पे ऑप्शन है, ध्यान से देखो, है ना।
वही ऑप्शन है सारे सब्जेक्ट जैसे ही शो करेंगे लिस्ट में, उसी में आपको उसी लिस्ट में जिस सब्जेक्ट पे आपको जानना है, जिस सब्जेक्ट का असाइनमेंट आपको करना है, उस पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा वो पेज खुल जाएगा। पेज खुल जाएगा, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट की पीडीएफ। तो 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे डाउनलोड पीडीएफ के फॉर्मेट। फिर उन्हें सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिए, वहाँ अपलोड का भी ऑप्शन है। ठीक है, अपलोड का भी ऑप्शन है। तो ये आप कर लीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।